जिनके पास ये जाके सीखते थे, वो असल उसकी ये है, हकीकत ये है। तो बाद में इन्होंने फिर साजिश के ज़रिए इंग्लिश हमारे अंदर उंडेली और अंग्रेज़ का हमें गुलाम ज़हनी तौर पे बनाया गया। जी शाहिद। मुफ्ती साहब मेरा यहाँ पे सवाल ये है कि ये शख्स कहता है, आपको फोटो इसकी आवाज़ से पता चल गया होगा ये किसने कहा है। हाँ जी, ये कहता है दुनिया में पहला जो मिर्ज़ा इंसान ताहिर आया, है। हाँ जी, वो आया था अफ्रीका में, और अफ्रीकन काले होते हैं, और वो जब ये ये वो दूसरी भाई देखो दुनिया, ना, झूठ की कहते हैं ना, कोई सर पाँव नहीं होते। झूठ एक झूठ बोलना है ना, ये झूठ का कोई सर पाँव होता है? वो चाहे नहीं वो तो जो अफ्रीका में वो चाहे, अब देखे वो झूठ बोल रहे हैं ना, मुल्हिद बोल रहे हैं ना कि ये इंसान गारे मिट्टी से बना है, पहले वो बंदर था, पहले वो था वो पता नहीं मेंढक था, कोई सुंडी थी, सुंडी से मेंढक बना, मेंढक से बंदर बना, बंदर से जनाब इंसान बन गए। झूठ के कोई सर पाँव होते हैं बताएं? नहीं तो मुफ्ती कोई साहब हूँ जेडे जितना मर्जी काले ने बोलो वो फिर। क्यों नहीं चिट्टे होंगे? मुफ्ती साहब सवाल मेरा है वे कि पहला इंसान आया, वो बाद ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕਲਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ओ बस ਤੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅਫਰੀਕਨ ਵਿਚਾਰੇ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਿੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ? ਉਹ ਤੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਾਦੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜ ਛੜਿਆ ਦਵੇ ਤੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਵੇ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਕੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਕਾ ਸਮਝਦੇ। ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਆ ਜੋ ਗੇਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਹੈ ਰੰਗੀਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਜਾਣਦੇ ਜੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ, ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਦਾ ਜਾਣਨਾ ਮੈਂ। ਉਹ ਅਲੱਗ ਬਾਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਰਹੀਏ ਜਾਂ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਡਾਂ ਤੇ ਬਈਏ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਬਾਤ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਾਣਦੇ ਸਭ ਆ ਅਸੀਂ ਕਿ ਹੈ ਕੀ ਗੇਮ ਕੀ ਹੈ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ। ਜੀ ਵਾਲੇਕੁਮ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੀਰ ਸਕਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੀਰ ਸਮਝਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਪੀਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਪੀਰ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਚੂੰਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਗਾਲਬਨ ਫਾਰਸੀ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ईरानी ने है, ईरानी ने और फारसी ही इन्हों की जुबान है। और की नाम है, अगलियां गल्लां बड़ियां ने। बहरहाल मुफ्ती साहब एक अर्ज है कि कोई फारसी मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा कि वो उर्दू बोले और उसमें फारसी की झलक ना हो। है मुझे अब शक हो गया कि ये फारसी नहीं है। अच्छा, बहरहाल कोई है, रोले बड़े है डॉक्टर साहब, रोले बड़े ने, रोले है ना। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ ਬੰਦੇ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੋਲਾ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਵਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸੁਣੋ, ਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਸੁਣੋ। ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾ ਸਭ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਆਪ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿ ਲਿੱਤਰ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫੇਰਨੇ ਨੇ, ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਵਕਤ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਫੇਰਨੇ ਨੇ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਤਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਗਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ ਨਾ। मुफ्ती साहब पंगे बात पता क्या है, मुफ्ती साहब हो गए और डॉक्टर होली स्पिरिट साहब हो गए, ठीक है, हम इनके फॉलोअर्स हैं, हमें ये सबसे प्यारे हैं, ठीक है। जी जी, जब मुफ्ती साहब ने आप मुफ्ती 1300 साहब के दफा फॉलोअर्स रहे, मैं भी उधर ही हूँ आपके साथ। 1300 दफा नहीं डॉक्टर साहब, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਜ ਹੋ, ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਜ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ मुजाहिदीन ने। ਜਦੋਂ मुफ्ती साहब देखो कि मैंने उसको इज्जत दी, ठीक है, लेकिन वो शख्स इज्जत के काबिल नहीं, ठीक है। हम अब आप भी मुझे बता दें कि क्या मिर्ज़ा लानती जो है वो टट्टी में नहीं मरा था? गूगल बता रही है कि उसका नंबर 5वें नंबर पे है, किताबें बता रही हैं कि किससे जिल्लत की मौत वो मरा। और वो एक शख्स आके कहता बताओ जी हमें
یہ سب کچھ پڑھنے کے بعد بھی, سننے کے بعد بھی اگر وہ کوئی شخص کہتا ہے کہ مجھے دکھاؤ کہ وہ کہاں لکھا ہے کہ ٹٹی میں مرا, تو پھر میرا تو دل یہی کرتا ہے اس کو گردن پکڑوں اور اس چارپائی پہ لے جاؤں. ਅੱਛਾ وہ ਮੈਨੂੰ ਯਾਰ بستر ਮੈਂ ਹਜੇ ਸੰਘਾਵਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ. ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੱਟੀ ਵਾਲਾ ਮੌਜੂ ਕਿਉਂ ਛੇੜਿਆ ਹੈ? ਓਏ ਮਈ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕਮ ਸੇ ਮੈਂ ਕਮ 40 ਇੱਕਦਮ ਮੈਂ ਹਜੇ ਹੁਣ ਅਲਰਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 26 40 ਮਈ ਪਾਉਂਡ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਲਾਤੇ ਨੇ ਏ, ਮੁਫਤੀ ਓਏ ਹੋਏ। ਸਰਕਾਰ 40 ਪਾਉਂਡ ਲਾਤੇ ਨੇ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੱਟੀ ਡੇ ਲੋ ਫਿਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏਗਾ. ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਵਕਤ ਲੱਭ ਜਾਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਰਾੜ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਾਬਤ ਕਰਾਂਗੇ. पहले हर साल हम करते हैं और मेरे पास तकरीबन 200 हवाला है. कितना? 200 कि इनका पूरे खानदान का ये मर्ज इनको लगा हुआ है टट्टियों का. मेरे कादियानी फैमिली, बच्चे बच्चे को टट्टी टट्टी मूतर, टट्टी मूतर, टट्टी मूतर. तो इंशाल्लाह वो हम करेंगे, इसके ऊपर पूरी ब्राडें करेंगे इंशाल्लाह. मैं पूरा प्लान बनाया था जी. मेरा प्लान टट्टी डे 26 मई टट्टी डे मनावांगे. मेरा प्लान ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਕੇਕ ਬਣਵਾਵਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕੇਕ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨੇ ਨੇ. ਉਹ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਦੇ ਨਾ ਇੰਜ ਦਾ ਕੰਪੇਨਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਸ਼ਾਹਦ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਲਾਈਵ ਆਏ ਟੱਟੀ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ. ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਉਤੋਂ ਮਿਰਦਾ ਹੀ ਮੰਗਾ ਲਿਆ ਟੱਟੀ ਵਾਲਾ. ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ. ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕਾਦੀਆਨੀਓ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਆਪਣੇ ਸਜਾ ਲਵੋ, 26 ਮਈ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਏ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਆ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ. ਦੂਰੇ ਵਾਲਾ ਦੇਖਿਓ ਜਰਾ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖਿਓ ਸ਼ਾਦ ਭਾਈ ਨੇ ਇਹ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਜੀ ਮਿਰਜ਼ਾ. ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਮਿਰਜ਼ਾ, ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਘਸੀਟੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਨੂਰੁਦੀਨ ਵੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ. ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ. ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਹੀ ਹੈ. 40 ਪਾਉਂਡ ਲਾਤੇ ਨੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ. ਨੱਪ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਨੱਪ ਕੇ ਰੱਖੋ. ਮਰਦਾਈਓ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰ ਲਓ, ਮਰਦਾਈਓ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰ ਲਓ ਆਪਣੇ ਸੁਹਾਬੀਆਂ ਦੀ ਕੰਜਰੋ. ਸਹੀ ਹੈ. ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਕ ਬਣਵਾ ਲਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕੇਕ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁੱਟ ਛੱਡਣਾ ਵੇ, ਕੇਕ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਖਾਵਾਂਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਿਠਾਵਾਂਗਾ. ਠੀਕ. ਜਿੰਨੇ ਮਰਦਾਈ ਨੇ ਪਲੀਜ਼ ਇਨਵਾਈਟਡ. अरसलान गुजर. जी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. टैट हैं? अल्लाह पाक दा सारे ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਮ. माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह. ए आमिर वान ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਟੈਟ ਕਰ ਯਾਰ. ਇਹ ਅਮਰਵਾਨ ਬਸ ਸ਼ਾਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਸ ਨਾ ਹੋਰ ਵਾਵਾਂ ਚ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੋਵਾਂ ਜੇ. ਵਾਲੇਕੁਮ. ਨਹੀਂ ਰਹਿਮਤੁਲਾਹ ਬਰਕਾਤੁ. ਉਸਤਾਦ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲ ਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ. ਔਰ ਰਾਠੌਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਉਂਝ ਹੀ ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਢਿੱਲਾ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਟੈਟ ਕਰਨ ਦੀ. ਤੇ ਟੈਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ? ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ, ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ. ਇਹਨੂੰ ਪੱਕੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫੇਰ ਐਡ ਹੋਣਾ ਇਹਨੇ. हाँ सही है. माशाल्लाह सोशल मीडिया की जो टीम है ये सही, ये बहुत, मैं कहता हूँ यकीन जानो इतना ही खुशी होती है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस महाज को हमारे मुजाहिदीन ख़त्म नबूवत ने ऐसे संभाल के रखा हुआ है. एक ब्राड, दूसरी ब्राड, तीसरी ब्राड, चौथी ब्राड, ब्राड पे ब्राड 24 घंटे ब्राडें चल रही हैं और लितर पे लितर. ओए होए होए, सही है, सही है, यही है. ਅਮਰੇ ਮੈਂ ਤਾਪੀ ਥੱਲੇ ਗਿਆ ਸ਼ਾਹਰਨ ਕਾਲ ਤਲਾ ਉੱਤੇ, ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਪੈ ਕੇ ਸੋਨਾ ਸ਼ਾਹਰਨ. ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋੜ ਕੀ ਹੋ? ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋੜ ਕੀ? ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆ ਵੇਖੋ. ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ?
पहचान हुए कौन है शाह जी? वो पता नहीं, तस्वीर है सही नजर नहीं आई है। अपने शाह जी। अच्छा हो रहा है। अच्छा शाह जी अपना ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ कैमरा। ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਹੀ ਹੈ ਭਾਈ, हाँ जी। ਠੀਕ ਠੀਕ। ਜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਅੱਲਾ। ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਰਹਿਣ ਦੋ, ਜਰਮਨੀ ਟੁਰ ਕੇ ਜੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਜਿਹਨਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਾਂ 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 ਹਾਂ, ਸ਼ਾਹਰੀ ਵੱਡੇ ਚੱਕਰ ਚ ਨੇ। ਇਹ ਨਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਾਜੀ ਚੰਦਾ ਕੋਲ ਕੁੱਟ ਪਵਾਉਣਗੇ। जिहाद जब करते थे तो उनका जासूसी निज़ाम कैसा, कितना टाइट होता था, कितना मजबूत होता था। ये हमारी इस्लामी तारीख है जो उन्होंने एक ड्रामे के अंदर थोड़ी सी, और ये हकीकी है, वो कोई जैली नहीं है, हकीकी है वो। तो अभी भी ये सोशल मीडिया भी वार है, जंग ही चल रही है ना यहाँ पर भी। तो इस वार के भी कुछ अपने तकाजे हैं, हिकमत अमलियाँ, और बसा औकात ऐसे होता है कि एक बीच में से मुखालफत करता है एक बंदे की, और दूसरा ही उसका भाई जो है ना वो दुश्मन के साथ रहता है। समझे कि नहीं? तो ये बहरहाल हिकमत अमली वो कहते हैं मोमन का गुमशुदा खजाना है। बड़ी हिकमत अमली तदब्बुर के साथ, जज्बात से नहीं, जज्बात में एकदम आते नहीं है। समझ आई कि नहीं? और इसकी कमी है वैसे, ये हमारे शाहिद भाई में तो कुछ ज़्यादा ही कमी है, और दूजे भी साढ़े जज्बाती है ने, कुछ जज्बात हर जगह नहीं चलते। बड़ी हिकमत अमली तदब्बुर, और जब आपका बड़ा कोई एक काम कर रहा है ना, फिर समझ लें कि फिर उसमें वाकई कोई कुछ ना कुछ है, ये नहीं तो इस तरीके से इसने करना नहीं था। समझ रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल शाह जी। बस ऐसा ही है। अच्छा मुफ्ती साहब, मैं एक सवाल करना चाह रहा हूँ। जी जी। अच्छा मुफ्ती साहब, ये मैं सुबह मैंने पीर असकानी से भी ये सवाल किया था। सबसे पहली फाइट मेरी हुई थी उससे तकरीबन आज से तकरीबन 1.5 माह पहले। चले वो बात की बात है, मैं आपसे वो डिस्कस भी करूंगा। वो ये मैंने सवाल किया कि किसी नामहरम औरत के पास जाके बैठना और अपने मुसलमान भाइयों के पास ना बैठना और फिर जाके कादियानियों के हक में बात करना, ये क्या इस्लाम इजाजत देता है नामहरम के पास बैठने की? तो फिर क्या कहा? वो तो आगे से कह रहे थे कि जी हालात देखे जाते हैं उसमें मुख्तलिफ उलमा इकराम की, वो तो बेसिकली ये साबित कर रहे थे कि बैठना जायज़ है। पता है क्या नाम या लाश लिखा हुआ है, मुझे आपका नाम तो नहीं पता। मुहाफिज भाई, बात ये है कि ये है मसला शरी। मसला शरी यहाँ नहीं, ये मामले कुछ और है। हमने असल चीज की तरफ आना। असल क्या है? मसाइले शरिया वो फिर मुफ्ती हैं, वो हुक्म लगाएंगे, वो ठीक है, उसके अंदर आज़ाद है मुफ्तियान इकराम, उन्होंने तो मसला शरी तो बताना ही बताना है ना भाई। अब हमारे ऊपर कई मुफ्तियान इकराम हुक्म लगाते हैं कि शरी हुक्म तुम्हारे ऊपर ये है, तो ठीक है, कोई मसला नहीं, फिर क्या हुआ?
तो अच्छा, हमारी जो वार है ना, वो वार कुछ और है। शरई हुक्म वो अपनी जगह पे मुसल्लम है, वो लगना ही लगना है। ये मामला है ना, जंगी कुछ असूल होते हैं, मैदान जंग के अंदर कई ऐसे मामला होते हैं कि जो आम सूरत हाल में वो हराम होते हैं, वहां पे हलाल हो जाते हैं। अब ये एक बड़ी तवील गुफ्तगू है इसके ऊपर, और वो मैं नहीं समझता कि खासा दी गल आमा अगे करनी मुनासब। हाँ जी, ते मिठी खीर पका मुहम्मद ते कुत्तियां आगे धरनी, वो खासों वाली बात है, वो खास समझते हैं। तो जंगी माहौल के अंदर मामलात कुछ और होते हैं, आम सूरत हाल में मामलात कुछ और होते हैं जी। अच्छा मुफ्ती साहब, एक और मैं मसला उठा रहे हैं। हमजा रज़ा कादरी साहब आए ने। हमजा रज़ा कादरी साहब, ਮੈਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਮਸਲਕ ਤੇ ਵੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਹੋ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ। ਇੱਕ ਹੰਬਲ ਜੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀਅਤ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਛ ਐਸੀਆਂ ਬੇਸ਼ਰਮਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਵਾਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇੰਤਸ਼ਾਰ ਫੈਲੇ मसलक के बारे। एक हम्बल जी रिक्वेस्ट है। अच्छा मुफ्ती साहब, मैंने जैसे शाद भाई कह रहे हैं जी कोई मसलक की बात की, मैंने कोई मसलक की बात नहीं की। हाँ, किसी ने बात इस तरह से कुछ की थी शायद से रात को, तो फिर कुछ बात हुई तो मैंने थोड़ी सी बात की, फिर मैंने कहा ये मसला ही नहीं है, हमारा मसला है ख़त्म नबूवत का, और उस पर ही रहो, हमारा मौजू भी वही है, बस। फिर बात ख़त्म हो गई थी, मैंने मसलक की बात ना की, ठीक है। मसलक की बात है बाद में, बस इतनी सी बात है। बाकी थैंक यू, सॉरी। अगर मैंने की है तो बताएं, हुक्म करें। नहीं, मुझे पता चला था, तो इसीलिए मैं एक छोटी सी अर्ज करता हूँ कि अगर कोई बंदा इस तरह की गुफ्तगू करता भी है ना, तो उसको अवॉइड करें, क्योंकि ये जो सोशल मीडिया है ना, यहाँ पर ये लोग चाहते हैं कि इस ये जो ऊपर बैठे हैं ना, मेरे ऊपर बैठे हैं, खुद में नबूवत से हमारा ध्यान हटे, ठीक है। ये जो ऊपर बैठे हैं ऊपर, जी नहीं हमदा भाई हमेशा बैठे हैं, सलमान भाई की ब्रोड पे आते हैं और फिर नहीं जाते। ये लास्ट भाई को देखा है, ये जो ऊपर बैठे हुए हैं, ये मेरे साथ कल बैठे हुए थे, तो ऐसे ही एक बंदा ऊपर रैंडम बैठा हुआ था, उसने कुछ बात की लाश भाई को ना, कुछ इस तरह से। आला मुफ्ती साहब आप बेहतर जानते होंगे, आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने जैसे कि फतवा लगाया था, तो उस हवाले से जैसे कादियानियों पर लगाया था, आपने एक किताब जो लिखी उसके हवाले से वो बात करने लग गया। मैंने कहा लिखी है, बेशक लिखी है, हम दिखा भी सकते हैं, पर अभी मौजू हमारा कुछ और है। तो ये देवबंद के जितने भी बड़े बड़े थे उस वक्त, उन पर जो फतवा लगाया उस पर वो गुफ्तगू करना चाह रहा था। मैंने कहा रहने दें, आप इसको ख़त्म करें। तो पता नहीं ये शायद उन्होंने फील कर लिया होगा, तो फिर शायद भाई तक खबर पहुंच गई होगी है, जिस तरह से भी मैं नहीं जानता, पर मैं मसलक की बात बाद में है, पहले ख़त्म नबूवत की बात है। हम मसलक का भी प्रचार करते हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, पर अभी मुद्दा मसलक का नहीं है। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह पाक आपको ईमान में रखे। जज़ाकल्लाह। नीचे ना वकास अहमद भाई और हाफिज वकास भाई आए हुए हैं, तो एक जगह मिल सकती है। अगर मैं होता तो मैं खुद ही नीचे, मुझे उतार दे, मैं नीचे बैठ के सुनता हूँ। नहीं हम बैठे। मैं उतर हूँ, बैठे आप। मैं नीचे उतर रहा हूँ, मेरे को थोड़ा सा काम है, मैं वापस आता हूँ ना फिर से। अच्छा यार ये गाना कित्थों आवाज आ रही है? ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਵਰਿਟ ਨਾ ਯਾਰ, ਅਸਲ ਚ ਨਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ YouTube ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਦੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਉਨੀ ਚੀਜ਼ ਕੱਟਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ठीक हो गया। वो लड़का आया टिकटॉक देख रहा सी तो
म्यूट ही कर देना हुजूर। अच्छा जी, अभी एक मैसेज आया है, अभी तो मैं 12 रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ व्हाट्सएप के ऊपर। दोस्त पूछ रहे हैं अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब 2 मिनट मिल सकते हैं मेहरबानी। आना खातमुन नबियीन व अंता या अली खातमुल औलिया। ए अली मैं खातमुन नबियीन हूँ और तुम खातमुल औलिया हो। इसकी वजाहत चाहिए। मेरा नाम एहतशाम है सरगोदा से। ठीक है, अच्छा इसकी वजाहत ये है कि ये मौजू है भाई, मौजू है मन गढ़त। ठीक है, सिलसिला अल अहादीस ज़ईफ़ा वल मौदूआ नासरुद्दीन अलबानी जिल्द सानी मतबूआ मकतबातुल मुआरिफ अर रियाद सफ़ा नंबर 136 है और हदीस नंबर 694। तो वहाँ पे मुकम्मल गुफ्तगू आप पढ़ लें। ये मौजू है, मन गढ़त है, कादियानी इसको पेश करते हैं। तो यही है इसकी वजाहत। और जी बात कर लें आप लोग, कोई सवाल करना है सवाल। मैंने ये बात पता क्यों की थी वकास भाई, वेलकम हो गया आपका। मुफ्ती साहब सिर्फ और सिर्फ मेरा मकसद ये था कि लोगों तक बात पहुंचाई जाए। अभी जो सोशल मीडिया पे पहले इतनी सिखों की जो मुसलमानों के साथ थी वो इन्होंने प्रोपेगेंडा किया, अब ये आहिस्ता आहिस्ता मसलक पे आने वाले हैं। ठीक है, तो इसलिए बीन मुसलमान हमारा फर्ज बनता है कि इस चीज को पहले से आगाह किया जाए कि इन ब्रॉडों का असल में पता है क्या, इधर देखें शायद भाई ये होता है कि हम ना किसी को डिक्टेट नहीं कर सकते। आजिज के साथ रहते हुए भी आपको भी एक अरसा हो गया, तो पुराने तो कई दोस्त हैं। आफ्ताब राठौर साहब हैं, बड़े ही पुराने हैं माशाल्लाह मेरे साथ। डॉक्टर होली स्पीट हैं और भी बड़े दोस्त हैं। मैंने आज तक नहीं किसी को डिक्टेट किया कि ये काम करो ये ना करो, कभी नहीं। ये कह रहे हैं कि वकास भाई की आईडी फेक है। वकास साहब म्यूट करो ना प्लीज। वकास दौरान म्यूट करो। जी मुफ्ती साहब बात करें। ये फेक का आईडी है जी, फेक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, तो ये है किसी को हम डिक्टेट नहीं कर सकते। हाँ ये ज़रूर कर सकते हैं कि जो हमारा हम ज़ेन नहीं है उससे हम पीछे हट जाएं, बस इतना ही है। या तो पीछे हट जाएं या उसको बावर करा दो भाई मेरा तुम्हारे साथ ये इख्तलाफ है, बस ठीक है, बात ख़त्म होती है। तो भाई तो वो मसलक पे करता है नहीं करता, उसकी अपनी सरदर्द करे ना करे, हमें इससे क्या लेना देना है। हम तो नहीं किसी को कोई डिक्टेट तो नहीं कर सकते। यहाँ पे तो सियासत पे बातें करते हैं। अब मैं हूँ आजिज़ हूँ, मुझे रत्ती बराबर शौक ही नहीं है कोई सियासत का, और ना ही मतलब किसी एक सियासतदान से मेरी तो नहीं लगती। तो अब मैं मतलब डिक्टेट करूँ किसी को, तुम क्यों करते हो, तुम फलां को क्यों मानते हो, मैं क्यों करूँ भाई। अब मसलक यहाँ पे बैठे हुए किसी का कोई मसलक किसी का कोई है, मेरा ये मौजू ही नहीं है, मैं करते ही नहीं हूँ इसके ऊपर बात। तो ये है कि हमारे भी मजाज के कई चीज़ें खिलाफ होती हैं, लेकिन कभी नहीं हमने ये देखा कि कभी आके किसी को डिक्टेट करें, हुक्म दें, ये करो ये ना करो, ये करो, मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे ये पसंद है। वो उसमें एक तकब्बुर भी पाया जाता है, बड़ाई, कि अपना आप कोई सब कुछ समझना, दूसरों को कुछ ना समझना। तो इन चीज़ों से इस वजह से मैं बाज रहता हूँ कि नहीं यार छोड़ो, हर एक की अपनी मर्जी है, जो करे ना करे उसकी अपनी खुशी है ना भाई, हम कौन। हाँ ये मैं ये कर सकता हूँ, मेरे अगर मजाज के कोई ज़्यादा ही खिलाफ है या मैं फिर पीछे हट जाता हूँ कि यार यहाँ दाल नहीं गलनी, वो फिर थोड़ा सा कदम पीछे हटा दे, बस इतना कर सकते हैं हम। तो वो ना हर एक की इज्जत नफ्स है, हर एक के मामलात है, हम नहीं किसी को ऐसे पाबंद कर सकते कि ये करो ये ना करो, ये करो ये ना करो। ये अब यहाँ पे मैं एक बात मजीद कर दूं। अब वो ये जब से ये मुझे आईडी ये हमजा नाम की, क्या था हमजा ही लिखा था, हमजा रजा सबदी मामा, हाँ, सबदी मामा, एक अरसे का मैं देख रहा हूँ। ये आज मैं पहली दफा माजरत हाथ जोड़ के हमजा से भी
मैंने कई दफा कहना बात कहनी मैं रुक गया, आज तक नहीं कह ही नहीं सका, आज कहने लगा हूं। वो भी सिर्फ इस्लाह की गरज से, ना कि तनकीद नहीं, तनकीद बराए इस्लाह, वो भी मौजू भी छिड़ा हुआ है। तो इस वजह से कि सबद इमामा दावत इस्लामी की कभी पहचान होता था, लेकिन अब नहीं है। अब अगर कोई सबद इमामा पहन के आता है, दिखाता है, तो और अब होगा ये कि वो आईडी मशकूक हो जाएगी कि इस बंदे की कोई भी बुराई होगी वो दावत इस्लामी के खाते में जाएगी। ये जानबूझ के दावत इस्लामी को बदनाम करने के लिए ये काम कर रहे हैं। तो ये बात मैं बड़ी दफ़ा कहा, लेकिन नहीं, रुक गया कि छोड़ो यार, मेरा इससे कोई तल्लक नहीं इस बात से, तो मैं क्यों किसी को डिक्टेट करूं। तो ये बातें हैं कि हम डिक्टेशन देने से बड़ा बचते हैं, यकीन माने। हर एक भाई अपनी गोल गर्दन है। अब देखें, वो आमिर का कैमरा ऑन है, उसने पैंट शर्ट पहनी है या जो भी, अब हो सकता है मुझे ये ना पसंद हो, तो क्या मैं मतलब डिक्टेशन देना शुरू कर दूं, ये तू कर, ये ना कर, ये कर, ये यार कमाल हो गई भाई। उसकी अपनी मर्जी, जो मर्जी करे, जिंदगी है उसकी, जो मर्जी, हर एक के मामला। हमारे दोस्तों में से कई दोस्तों को मैं जानता हूं कि जो ड्रिंक करते हैं, कभी नहीं हुआ कि मैंने मतलब उनको कोई ऑर्डर किए हों, या मुझे अपनी लाइफ है, उनकी करे ना करे, जो मर्जी करे। बसा औकात यही होता है कि हमें गुनाह अगले का पता चल जाता है। तो कई तो गुनाह ऐसे होते हैं कि जिनका हमें पता ही नहीं चलता, तो उनका क्या करना है। हमारे कितने गुनाह हैं जो लोगों को पता ही नहीं है। तो ये जो है ना, सत्तार की जो सिफत होती है ना, वो होनी चाहिए कि अल्लाह पाक सत्तार है, छुपाता है, पर्दे डालता है। तो जब अल्लाह पाक एक अपने बंदे को छुपा रहा है, तो बंदे हैं उसको जलील और ख्वार करने के ऊपर जुटे हुए हैं, अच्छा नहीं लगता, गैर मुनासिब सा काम है। साहब, एक मेरा मासूमाना सा सवाल है जी कि आजकल माशाल्लाह आप क्या खा रहे हैं? माशाल्लाह बहुत खूबसूरत से खूबसूरत होते जा रहे हैं। जामिया खोला जी, खा रहे हैं, खिला रहे हैं, मालक खिला रहे हैं, मालक खिला रहे हैं, लेकिन असल ये खत्म नबूवत का काम कर रहे हैं। जामिया खत्म नबूवत की भाग दौड़ लगी हुई है, तो मुझे तो चस आ रही है। वो कहते हैं ना, मछली पानी से बाहर आ जाए तो जब पानी में वापस जाए तो उसकी जो कैफियत होती है मछली की, उसको जिंदगी मिल जाती है। तो ये खत्म नबूवत का काम, हमारा फोटो ना ला, वायलेशन आ जानी है। तो वो ये है कि बस हमें ये काम करके ज्यादा मजा आता है, चस आती है। अल्लाह ताला तुहानू एनजी कामयाब करे। आमीन आमीन। अच्छा यार, मैं ना पैगाम दे के फिर मुझे इजाज़त दे दें, मैंने अपनी कंपेन भी चलानी है। अगर आप तवज्जो से थोड़ा सा पैगाम सुन लें। जामिया खत्म नबूवत का मैंने अर्ज़ किया था कि यार इसके लिए हमें मुआमिनीन की ज़रूरत है, जो मंथली हमारे साथ थोड़ा सा 1 रुपया, सिर्फ 1 रुपया मंथली देने वाले हमें चाहिए, जो हर महीने हमें 1 रुपया, ज़्यादा नहीं, तो वो हमें चाहिए, ज़रूरत है। थोड़े थोड़े से वो दरिया भर जाता है यार। तो थोड़ा सा चलें, आप हमारे साथ चलें भाई। बड़े बड़े काम अभी हम छेड़ रहे हैं और बड़े बड़े काम छेड़ चुके हैं। तो आप लोगों के साथ से तामुन से चलना है ना। अकेला बंदा कितना पूरा उतर सकता है या क्या कर सकता है। हम अपना काम कर रहे हैं, आप लोग अपना काम करें, थोड़ा थोड़ा सारे ही शामिल हो जाएं भाई। तो मंथली जो हमारे महाना फंड के अंदर शामिल होना चाहें, एज यू विश, तो वो मुझे व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता कर लीजिएगा, ठीक है जी। किसी के ऊपर कोई पाबंदी नहीं, हर एक आज़ाद है। तो देने वाले का भी भला, ना देने वाले का भी भला, समझ आई कि नहीं।
तो जज़ाकल्लाह भाई, रब रखा, मुझे इजाज़त है। डॉक्टर साहब किधर हैं? डॉक्टर साहब, जी अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब इजाज़त चाहिए। अच्छा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, रब रखा जी। अस्सलाम वालेकुम सब दोस्तों ਨੂੰ भाई। वालेकुम काका सपाई साहब भी, राव साहब भी आ गए ने। वालेकुम अस्सलाम। राव साहब टैट हो। ਸਾਹਿਬ ਕਾਕਾ ਛਪਾਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਪਲੇਨ, ਜੇ ਮੈਂ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ। ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ। ਜੀ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਕਾਕਾ ਛਪਾਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਨੂੰ ਗਲਮਿਓ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਤਰੀਕਣਾ ਵੇ, ਇਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਟੇ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸਹੀ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਵਰਗੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਕੁਝ ਮਿੱਠੇ ਹੋਣ, ਕੁਝ ਕੋੜੇ ਹੋਣ, ਕੁਝ ਇਲਮੀ ਹੋਣ, ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਲਓ। ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਤੇ ਨਾ ਟੁਰ ਪੈਣ, ਬਸ ਇੰਜ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰੱਬ ਰੱਖਾ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਵਰਹਿਮਤੁਲਾਹ। ਚਲੋ ਜੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਦੋਸਤੋ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰੋ ਨਾ ਸ਼ਾਦ ਭਾਈ। नहीं आप ਜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਅਲਾ ਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮ ਕਰ ਅਲੈਕੁਮ। ਦੇਣੇ ਤੇ ਆਮਰ ਤੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਕੈਮਰਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂ? ਮੈਂ ਹੱਥ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਜਾਏ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੀ ਕਰਨਾ। अच्छा डॉक्टर साहब शायद इजाजत है। ਨਹੀਂ ਠਹਿਰੋ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਿਓ। ਅਮਰ ਕੈਮਰਾ ਬੰਦ ਤਾਂ ਮਰਿਆ ਕਹਿ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਉਂਝ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਤੂੰ ਕੈਮਰਾ ਆਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਚਿਪਾ ਮੂੰਹ ਲਾਇਆ ਯਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਬੰਦਾ ਡਰ ਜਾਂਦਾ। ਲੋ ਜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕੈਮਰਾ ਬੰਦ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੈਮਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਅਲਾ ਸ਼ਾਹ। ਹੀਰਾ ਪੀਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ, ਹੈਲੋ। म्यूट सॉरी म्यूट लॉक नहीं ना भाई। अच्छा जी डॉक्टर साहब और कुछ अर्ज फरमाएंगे सरकार हजूर? नहीं मैं बस सुन रहा हूँ, आप बात करें। मुफ्ती साहब मैं डॉक्टर साहब मैं कंप्लेन करनी है शाह होरां दी। केड़े शाह जी? शाह साहब माशाल्लाह चंदा सिस्टर के हस्बैंड। हाँ कितने होते बैठे सन, अभी तो नहीं है। सारियां बंदे के सामने मैं कंप्लेन पे करना शाह होरां। नहीं वो थे मौजूद नहीं ना। शाहिद ज़नाई और शराबी है, तो अगर आपकी बहन ने बता दिया है तो मैं क्या कह सकता हूँ जनाब? अपनी बहन से पूछें। नहीं दोबारा कहें, क्या बात है? कह रहा है कि शाहिद शराबी और ज़ानी है। अच्छा किसने कहा है? शाह साहब ने? एक बंदा लिख रहा है नीचे। नहीं शाह साहब ने नहीं कहा, ये बंदा लिख रहा है नीचे। अच्छा तो मतलब वो तो अपना ही आईने में चेहरा देख रहा होगा, तो उसने सोचा कि सब उसकी बहन ने बताया शाह साहब। अच्छा इतने जाहिल लोग हैं डॉक्टर साहब। जब से इमरान खान सीट से गिरा है ना, शादरो नादर ठीक है, कोई मैंने छुट्टी की होगी लाइव ना आया हूँ ठीक है। मुझे हाँ, अगर आप मुझे कहते हैं ना कि मैं नशा करता हूँ, हाँ मैं करता हूँ। मैं यहाँ पर 45 बंदे सुन रहे हैं, अगर आपको पता बता दूं कि मैं नशा करता हूँ तो हाँ मैं करता हूँ। वो नशा पता क्या है? वो इश्क मोहम्मद का नशा ठीक है। ये मैं अल्लाह एलानिया करता हूँ ठीक है। ये जुनून है मेरे दिल पे कि नमूस रसालत पे पहरा देना ठीक है। ये नशा मैं सरेआम करता हूँ, और अब इसी नशे की सूरत में जनाब मैं मर्ज़इयों की मंजी टका के ठोकता हूँ। आपको पता है जब लामा इकबाल कादियानियत को क्या रद्द कर रहे थे तो उन्होंने एक शेर लिखा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। ये जिस वक्त उन्होंने शेर लिखा तो मिर्ज़ा महमूद ज़ानी जो काना था उसने आपको लामा इकबाल को मुस्लिम लीग से भी अलग करने की कोशिश की और कश्मीर कमेटी से अलग कर दिया। तो लामा ने एक नज़म लिखी, उसका ये शेर था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं,
یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. تو علامہ اقبال نے یہ مرد محمود درانی جو تھا اپنی بچیوں سے زنا کرنے والا کانا شخص, اس کو کہا کہ تو جو مرضی کر لے, اور اس نے چونکہ اس کے ساتھ ظفر اللہ چودھری تھا اور قائد اعظم پتہ نہیں کس طرح کے سوچتے تھے کہ انہیں لگتا تھا کہ قادیانی پر اعتبار نہ کیا تو شاید کچھ ہو ہی نہیں سکتا. تو اس حالت میں بھی انہوں نے یہی کہا تھا. اور علامہ اقبال کہتے تھے کہ میری عمر کہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ بڑھ جائے. تو وہ 61 سال کی عمر میں فوت ہو گئے. تو یہ بڑے عاشق رسول قسم کے لوگ ہیں, رہے ہیں دنیا میں. دنیا سے تو ہر شخص چلے جاتا ہے, لیکن یہ بس جن کو اللہ تعالیٰ سزا دینا چاہے وہ قادیانی ہو جاتا ہے یا ان کا سہولت کار ہو جاتا ہے. اور مجھے چھپے قادیانی بہت زہر لگتے ہیں. ہاں سامنے آؤ, کہو کہ تم قادیانی ہو, ٹھیک ہے, چھپ کے آنا. اور ایسے بہت سارے قادیانی ہیں جو مولوی بن کے مسلمانوں کی مسجدوں میں لگے ہوئے ہیں. ایسا ایک دستہ تیار کرتی ہے یہ جو زانیوں کی جماعت ہے, یہ ایسے لوگ پیدا کرتی ہے کہ جو چھپ کے آپ کے اندر آئیں گے, مسلمان ہوں گے, لیکن ان کا مطلب ایک یہ بہت بڑی نشانی ہے. مطلب بعض لوگ تو مرزے پر لعنت بھیج دیں گے, وہ ایسے چھپے ہوئے ہیں, وہ ملحد ہیں, بہت شدید قسم کے ملحد. اگر کوئی شخص ملحد نہیں ہوتا ہے یا الحاد میں اس کو شک ہوتا ہے, جیسے ایگنوسٹک ہو جاتا ہے, وہ ایگنوسٹک ملحد اور ایمان والے کے درمیان میں ایک چیز ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ دین ایمان تو کوئی نہیں ہے, لیکن ایک ایسی طاقت موجود ہے اس دنیا میں جو سب کچھ کرتی ہے, یا آپ کے لیے بھی وہ طاقت کچھ کر سکتی ہے. وہ ایگنوسٹک کہلاتی ہیں وہ لوگ. وہ دین مذہب کے اتنا خلاف نہیں ہوتے وہ, لیکن وہ مانتے بھی بالکل نہیں ہیں. ملحد جو ہے نا وہ بالکل مان لیتا ہے کہ دین مذہب کے بالکل خلاف ہو جاتا ہے, کیونکہ اس کو خدا پر یقین ہی نہیں. وہ سمجھتا ہے یہ بیوقوف دنیا بھری ہوئی ہے. کوئی کہتا ہے اللہ کو مانو, کوئی بھگوان کے پیچھے پھرتا ہے, کوئی کسی کے پیچھے پھرتا ہے, تو وہ ان کو بڑا عجیب لگتی ہے یہ بات. تو یہ جو چھپے ہوئے ہیں نا, ان میں سے اکثریت ملحدین کی ہے, لیکن جو چھپے ہوئے ہیں اور وہ ملحد تو ہیں لیکن قادیانی ہیں, وہ مرزا قادیانی پر لعنت نہیں بھیجیں گے. یہ آپ میری بات پکی سمجھ لیں. اور یہ پیدائشی قادیانی, یہ جو اسکانی نام کا شخص ہے, یہ پیدائشی قادیانی ہے. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, یہ نہیں کہ یہ قادیانی کنورٹ ہوا ہے, یہ پیدائشی قادیانی شخص ہے. اور یہ ان کی ایک بہت بڑی نشانی یہ ہے کہ یہ مرزا قادیانی پر مر جائیں گے, لعنت نہیں بھیجیں گے, اور ایسے ہی ہیلے بہانے تلاش کریں گے. یہ آپ پکا میرا نشان رکھ لیں کہ پیدائشی قادیانی مرزا قادیانی پر کبھی لعنت نہیں بھیجے گا, یہاں تک کہ وہ قادیانیت کو چھوڑ دے. پھر سب سے زیادہ جب وہ قادیانیت چھوڑے گا تو اس کی پہلی نشانی آپ کو میں بتا دوں, وہ سب سے زیادہ مرزا قادیانی پر لعنت بھیجے گا, کیونکہ اس کو اس بات کا غصہ ہوگا کہ ایک جاہل مطلق, زناکار, چور, بھنگی, فراڈیا, نہ روزہ, نہ نماز, نہ جمعہ, نہ زکوٰۃ, نہ حج, نہ اعتکاف, نہ تسبیح, نہ جائے نماز, پیدائشی حرامی, ولد الحرام, ولد الزنا. یہ سمری ہے جی مرزا قادیانی کی, سہانے کی یہ سمری ہے, بالکل مستند. تو یہ ایسا شخص جو ہے, اس کو جب پتہ لگ جاتا ہے تو اس پر تو بہت لعنت بھیجتا ہے. پھر وہ آپ دیکھ لیں جتنے بھی ایکس قادیانی ہیں, نہ صرف بلا جھجک مرزے پر لعنت بھیجتے ہیں, بلکہ وہ موقع تلاش کرتے ہیں مرزے پر لعنت کب بھیجی جائے. لیکن جو چھپا قادیانی ہے وہ کبھی مرزے پر لعنت نہیں بھیجے گا, حالانکہ خدا تعالیٰ کہتا ہے. اب آپ اس شخص کو کیا عالم کہیں گے جو آپ کو اللہ جو میں تمہیں حدیث دکھاتا ہوں, دیکھو حدیث میں تان نہیں کرنی. ارے خدا تعالیٰ لعنت بھیج رہا ہے انسانوں کے, فرشتوں کے بہاف پر. اگر کسی نے زندگی میں ایک یہ مرزا قادیانی والے دعوے ہیں کریں گے کہ ہم جی بڑے عالم ہیں, یہ ہیں وہ ہیں,
لیکن مرزا قادیانی بھی کہتا تھا جی مجھ پر قرآن نازل ہو رہا ہے. اور میں تو ایک دلیل بار بار لوگوں کو دیتا ہوں کہ وہ شخص جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس پر قرآن نازل ہو رہا ہے، کم از کم اس نے قرآن ایک دفعہ تو زندگی میں پڑھا ہوگا نا. اور سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 4 میں لکھا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُم، کہ ہم نے آج تک دنیا میں ایسا نبی ایسا رسول نہیں بھیجا سوائے اس بے لسان اس زبان کے ساتھ قوم ہی جو اس کی قوم کی زبان ہے. کتنا صاف لکھا ہوا ہے، قوم ہی، بے لسان اس زبان کے ساتھ قوم ہی جو اس کی زبان کی قوم کی زبان. کس قوم میں آیا مرزا قادیانی؟ پنجابیوں میں. وہ ایسا سالہ خبیث کی نسل تھا کہ وہ پرنالے کو پھنالا پھنالا کہا کرتا تھا اور اس سے بولا ہی نہیں جاتا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس پر یہ بھی بڑی خاص لعنت کی کہ نہ وہ مسلسل بول سکتا تھا، نہ وہ کوہرنٹ سپیچ دے سکتا تھا. اس نے کبھی کوئی مناظرے نہیں کیے جس میں اس نے بول کر مناظرہ کیا. اور ایک دو دفعہ جب اس نے کوشش کی تو آتم کے ساتھ تو اس کے اپنے گھر والے، اس کے رشتہ دار عیسائی ہو گئے. تو آپ مجھے بتائیں ایک شخص جو قرآن پاک کے معیار نبوت جو ہے کہ اللہ نے آج تک وہ نبی نہیں بھیجا سوائے بلسان قوم ہی، اس کے قوم کی زبان. اگر مرزا مرتد نے ایک ہی دفعہ قرآن زندگی میں پڑھا ہوتا تو آپ مجھے بتائیں، تو وہ تو غور سے دیکھتا نا بھئی نبی کی کیا خصوصیات ہیں قرآن پاک میں. اور نبی کی سب سے بڑی خصوصیت قرآن پاک میں ہے کہ وہ اس کا الہام، اس کا پیغام ہمیشہ اس کی قوم کی زبان میں ہوتا ہے. پنجاب میں پیدا ہوا، پنجابی تھا، سالے کو اردو ہندی تو آتی نہیں تھی، اور اس کے آویں جامیں لکھنے والا، اور باقی تو دوسروں نے لکھ کر دیا ہوا ہے اسے. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک دن تو گرامر آویں جامیں کی ہو، دوسرے دن اتنی سلیس اردو لکھ رہا ہے. یہ بھی ایک خباثت ہے اور جگہ جگہ پر کھلا پڑا ہے. اور اس کے بعد جو لوگ اسے مانتے ہیں آپ اندازہ کر لیں کہ وہ جاہل ہیں، یا آ کے کہتے ہیں جی ہم بہت بڑے عالم ہیں ہماری بات مان لو، میں عالم ہوں. بھائی سند لگاؤ نا، ادھر کیمرہ نہیں تیرے، ادھر لگا کر دکھا ہمیں. کچھ بھی نہیں ہے ان کے ہاتھوں میں. یہ جو لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی سزا دیتا ہے، اور ایسی ویسی سزا نہیں دیتا، بڑی شدت کی سزا انہیں ملتی ہے اس دنیا میں، اور آخرت میں بھی ان کا کوئی حصہ نہیں. ہاں جو ظاہراً کہتے ہیں، کھل کر کہتے ہیں ہم قادیانی ہیں، ٹھیک ہے، ان میں سے 90% ایسے ہیں جو مطلب یہ کھل کر بھی نہ کہیں تو وہ آپ کو مطلب چھپا جاتے ہیں، بعض خوف کی وجہ سے، بعض کہ سوشلی ان کی تعداد اتنی نہیں ہے، حالانکہ ان کی جماعت جھوٹ بولتی ہے کہ ہم تو 22 کروڑ ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ تو جھوٹ بولنے میں کمال کے مفتری ہیں، ان کو سمجھ ہی پتہ نہیں کیا کیا کہہ جاتے ہیں یہ لوگ. تو 90% قادیانی جو ہیں وہ قادیانیت سے ناواقف ہیں، بالکل ناواقف. آپ اس ادھر کہیں کہ کوئی ان میں سے قادیانی آ کر بیٹھ جائے. اور ابھی مفتی صاحب نے آپ سے بتایا تھا کہ یہ قادیانی جو ہیں یہ جب اسلام قبول کرتے ہیں نا، یہ واقعی یہ کہتے ہیں، اور میں بھی بڑا حیران ہوا. اکثریت نے مجھ سے وعدہ لیا ہوا ہے کہ میں کسی کو نہیں بتاؤں گا کہ وہ قادیانی ہو گئے. میں پوچھتا ہوں کیوں؟ کیا تمہیں اعتبار نہیں ہے کہ اللہ تمہارے ساتھ؟ تو کہتے ہیں نہیں جی ہمارے گھر والے ہیں، چاچے ہیں، مامے ہیں، دوسرے ہیں، رشتہ داریاں ہیں. تو اکثریت جس نے یہ جماعت، یہ گروہ کافروں کا چھوڑا ہے، وہ خاموشی سے الگ ہو گئے. اور اس کی جھلک ان کے یہ جو بھتہ وصول کرتے ہیں نا، اس میں آپ کو صاف نظر آتی ہے. ان کا بھتہ 70% سے کم ہو گیا ہے. یہ ایک دھندا ہے پیسے اڑانے کا اور عیش کرنے کا بس. اور میں آپ کو بتاؤں یہ عیش صرف مرزا خاندان کر رہا ہے، اور یہاں چند دوسرے لوگ جو آج کل، وہ بھی پچھلے 15-20 سال سے جب سے یہ گدھا آیا ہے نا مسرور، تو کچھ اور لوگ حصے دار ہو گئے ہیں یہ جو چندے کھانے والوں میں. ان میں رفیق حیات ہے اور چند دوسرے لوگ ہیں جو عیش کر رہے ہیں ان پیسوں پر. ورنہ پرائمریلی یہ مرزا خاندان کی آمدن کا ایک ذریعہ ہے. اور میں جو نہیں جانتے تو آپ یہ جان لیں کہ خلیفہ تو کچھ بھی خرچ کر سکتا ہے نا.
और उसको ये नजराने नजरूने भी देते रहते हैं, तो उसकी बेशुमार आमदनी हो जाती थी। अब तो खैर नहीं है, मैं आपको बता दूं। गधे को लोग बहुत कम पैसा देते हैं, ये भी मैं आपको बताऊं। और बल्कि मुझे अभी थोड़ा देर हुई है, पता लगा है कि अमेरिका से किसी ने मुझे बताया कि वो लोग जिन्हें मैं जानता हूं उनमें से 3 डॉक्टर थे और उनकी फैमिलीज थी। उसने कहा कि वो अब कादियानियों के टेंपल में नहीं जाते हैं, और वो उनमें से एक जो है ना, वो मुसलमानों की मस्जिद में आता है जुम्मा पढ़ने। तो देखें, ऐसे हैं, ये होता है, वो खामोशी से अलग हो जाएंगे, इन्हें कोई पैसा वैसा नहीं देंगे, और ये उनसे ज़बरदस्ती पैसा वसूल नहीं कर सकते। और अब ये इस बात से पहले आपको मैं एक टेक्निकल बात बता दूं इस जमात के बारे में, कि अगर आप बैत फॉर्म साइन नहीं करेंगे तो ये आपके खिलाफ कुछ नहीं, आपके खिलाफ ये ऐलान, अगर जिसने फॉर एग्जांपल एक कादियानी है और उसने किसी वक्त भी, यानी कि जब खलीफा बदले ना, ख़ास तौर पर ये जो इनका जालसाज नहीं होता, जो ठग होता है जिसको डॉन कहते हैं, ये जो ठगों का सरदार है, वो बदले और आप उसके नाम की बैत ना करें, उसके नाम का फॉर्म साइन ना करें और अलग हो जाएं, तो ये जमात आपको, जमात जिसको कहते हैं ना निज़ाम जमात से खारिज कर देना, ये एक बड़ा इनके लिए होता है कि वो फिर पूरी दुनिया में ऐलान करते हैं कि इसको हमने जी जमात से खारिज कर दिया है, इसने जो है ना बड़ी वाहियातियाँ की हैं, और कभी कभी तो लिखते हैं कि इस्लाम के असूल के खिलाफ, जिनमें इस्लाम है ही नहीं। यही तो हम कहते हैं कि ये ला इकराह दीन के ज़मरे में नहीं आते, तो फिर उनकी बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो अभी मैं आपको बताऊं कि ये जो हमें, और मेरी इतला बड़ी मुस्तनिद होती है इस खबीस जमात के बारे में। इस जमात में जब ये गधा मसरूर आया था ना, तो 30% से ज़ायद लोगों ने इसकी बैत का फॉर्म नहीं साइन किया, 30% से ज़ायद लोगों ने, ये भी मैं आपको बता दूं। उनमें मैं आपको सबूत के तौर पर बशीर साहब जो हैं, आप उनसे जाकर पूछ लें, वो यूनाइटेड स्टेट्स में रहते हैं, आप सोशल मीडिया पर बहुत हैं, वो जो अहमदिया फैक्ट चेक ब्लॉग चलाते हैं, उनसे आप पूछें कि आपने कादियानी छोड़ी। उन्होंने कहा नहीं नहीं, जब ये गधा आया तो मैंने बैत फॉर्म साइन ही नहीं किया। अब कोई आदमी मुझे ला कर दिखा दे कि उनके खिलाफ एक, हालांकि वो पब्लिकली कहते हैं मैं ये कुफर को छोड़ चुका हूँ, तो कोई मुझे एक बात दिखा दे कि उन्हें जमात से इखराज का कोई लेटर उनके खिलाफ हो। क्योंकि अगर ये जमात, ये हुकूमतें जो है ना यूरोप, अमेरिका की और पाकिस्तान से बाहर की जितनी भी हुकूमतें और इस्लामी मुल्क जो हैं, उनका तो पॉइंट ऑफ व्यू ही अलग है। जो नॉन मुस्लिम कंट्रीज हैं वो कादियानियत को एक तंजीम के तौर पर देखते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन, जिसको नहीं कहते NGO, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस इनको इन जनरल कहा जाता है। ये अपने आप को एज ए चैरिटी रजिस्टर करते हैं। तो जैसे कोई भी, आप भी एक NGO बना लें और आप उसकी मेंबरशिप बेचें, जो जो मेंबर साइन करेगा तो वो आपका कमिटेड मेंबर होगा। अगर वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन छोड़े तो आप कानूनी तौर पर एक ऐलान कर सकते हैं कि इसने ये छोड़ दिया। लेकिन कादियानियत को इस बात पर सू किया गया है अदालतों में कि आप ये नहीं कह सकते कि इसके खिलाफ अब आप एक्शन लें, इसके खिलाफ सोशल सेग्रीगेशन करें, ये कानून के खिलाफ बात ये करते हैं। इसलिए अब जब इनको फ्रांस में, स्वीडन में और यूनाइटेड किंगडम में इस बात पर अदालतों में लोग लेकर गए, और ये अदालत कभी नहीं आते, ये आउटसाइड कोर्ट सेटलमेंट है इन सब केसेस की, ये भी मैं आपको बता दूं। कादियानियत अदालत से इतनी खौफजदा है जैसे चूहा बिल्ली से खौफजदा होता है। ये भी मैं आप सबको एक बात बता दूं, कादियानी कभी अदालत में आकर पाकिस्तान ने इसके खिलाफ कुफ्र का फतवा दिया है, तमाम इस्लामी ममालिक ने इसके खिलाफ कुफ्र का फतवा दिया है और इर्तदाद का फतवा दिया है, जिसकी बड़ी शदीद सजा है शरीयत में। इनको चाहिए कि ये आलमी अदालत में खड़े होकर कहें कि हमारे खिलाफ गलत फतवा दिया गया है। इंसाफ की बात है ना। अगर कोई सच्चा है तो इन्होंने पाकिस्तान की अदालतों में गए, इन्हें पता है पाकिस्तान ने इनके खिलाफ कुफर का फतवा दिया है, तो ये आ गए, उन्होंने पहले दिन ही बता दिया तुम फ्रॉडी हो। फ्रॉडुलेंट क्लेम, हर क्लेम पर लिखा हुआ है फ्रॉडुलेंट क्लेम। इनको चाहिए कि आलमी अदालत में आ जाएं
और एक मुकदमा पेश करें वहां पर, अपने आप को 22 करोड़ कहते हो, तुम क्यों नहीं आते आलमी अदालत में और कहें कि पाकिस्तान की और तमाम इस्लामी ममालिक को, और ये भी आप जान लें कादियानियत तमाम इस्लामी ममालिक में काफिर करार दे दी गई हुई है एक अरसे से, 1974 से, बहुत पहले से। तो जहां आकर एक मुकदमा करें कि हमारे सोशल राइट्स, क्योंकि ये अजालम की बुनियाद क्या है, यही तो हम आप आजकल लिख कर दे रहे हैं हुकूमतों को कि आप जिस बुनियाद पर इनको असाइलम देते हैं वो बुनियाद ये चैलेंज ही नहीं करते। अब पाकिस्तान में कादियानियों को क्या तकलीफ है? मजलूम हम हैं कादियानियों के हाथों पाकिस्तान में, और असाइलम ये क्लेम कर रहे हैं। कानून बना है, उस कानून पर, वो भी पार्शियल कानून बना है, उस पर अमल ही कोई नहीं हो रहा। अब इन सूरत हाल में होना तो ऐसा चाहिए कि कादियानी आलमी अदालत में जाए, क्योंकि ये तो क्लेम है ना कि हम मुसलमान हैं और बाकी काफिर हैं सारे। तो उनको कहें जी कम से कम हमें ऐसा करो, हमारा हक दिलवाओ कि कोई इस्लामी मुल्क हमें काफिर ना कह सके। और उसकी वजह है कि उनको जैसे अजालम में कहते हैं जी हम पर बहुत जुल्म होता है, हमें मारते पीटते हैं, जूते लगाते हैं, घरों को आग लगा देते हैं, देखो हमारी मस्जिद के मीनारे गिरा दिए। जी बताएं ना आलमी अदालत को कि जनाब इम्प्लीकेशन है इस बात की हमें काफिर करार देने की। हालांकि इनमें से कोई बात भी सच नहीं है। मैंने कभी किसी कादियानी का घर जलते नहीं देखा, लेकिन कादियानियों को हमारे घर जलाते देखा है। कादियानियों ने 20,000 लाहौरियों को शहीद कर दिया अपने हाथों से, और शहीद करने जिन्होंने गोलियां चलाई वो जर्नैल भी कादियानी मुर्तद, और उन्होंने खास तौर पर अल फुरकान बटालियन के लोग शामिल थे, उसमें सारे कादियानी थे जिन्होंने गोली चलाई लाहौर वालों पर। मजलूम कौन? हम मजलूम। तो कादियानी कभी भी अदालत में नहीं जाएगा, क्योंकि ये धोखेबाज, फ्रॉडिया और झूठा है ये सिलसिला, और इसमें बहुत मजलूम लोग जो है ना फंसे हुए हैं, ये आपको इल्म होना चाहिए। और ये देखें, और ख़ास तौर पर वो लोग जिन्हें ये मुसलमानों में इंसर्जेंट बनाकर भेजते हैं, अपना सहूलतकार जिनको समझते हैं, और वो आके कहते हैं लो जी मिर्जे की मौत तो जी बड़े लोग मर जाते हैं, और लानती की मौत तो लानती मौत हुई है। आकर हमें लेक्चर देना शुरू कर देते हैं कि जनाब मिर्जे की मौत तो ऐसे तो बड़े लोग मरते हैं। भाई पखाने में कोई नहीं मरता। जाहिल के बच्चे ये जो है, मतलब तुमने अगर कुछ करना है तो अपनी जहालत घर छोड़कर आया करो। हम नहीं देखते। मेरा तो पेशा ही है कि मैं लोगों को मरते देखता हूं। जहां मैं काम करता हूं मेरा काम यह है। मैंने तो किसी को इतना गंदा नहीं देखा, आज तक नहीं देखा जो मरता हो। जैसी भी सूरत हाल में घर में भी कोई वफात पाए तो ऐसी वफात नहीं होती है उसकी कि अपने ही पखाने में लथपथ पड़ा है, मुंह में लिथड़ा हुआ है। और ये मैं आपको बताऊं, मिर्ज़ाई अपने आप को बहुत बड़े, ये जो खास तौर पर इन्होंने लंबी दाढ़ी बनाकर और ये जो छुपा कर भेजे हुए हैं, उनसे होशियार रहें। ये लोग जो है ना आप में तफरका डालते हैं, उनकी निशानियां सुन लें। पहली बात, वो मर जाएगा, कभी मिर्दे पर लानत नहीं भेजेगा। अगर लानत भेज भी दे, यानी कि वो इल्हाद में बिल्कुल बड़ा हुआ हो, तो फिर वो आप में तफरका फैलाएगा, कहेगा ये सुन्नी है, ये वहाबी है, आपको किताबें ला ला के पेश करेगा। ये जहालत नहीं तो और क्या है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मेरे बाद इज्तिहाद करो, इस्तिंबात करो, क़ियास करो, अगर इनसे मसले का हल ना निकले तो इजमाए उम्मत करो। ये हरामी ये कहते हैं कि एक कुत्ते को, एक शराबी को, फीमी को, चोर को, डाकू को, फ्राडिये को ना रोजा, ना नमाज, ना जुम्मा, ना ज़कात, ना हज, ना इत्तिकाफ, हरामी पैदाइशी, बाप ना मालूम, उसको तुम मान लो। हम कैसे ये मान लें? ऐसा नहीं हो सकता। तो बहुत शुक्रिया आपका। थोड़ी देर बाद मुझे एक मीटिंग में जाना है, तो जज़ाकल्लाह। अभी मैं बस 2-3 मिनट ठहरूंगा। डॉक्टर साहब एक सवाल करना था। जी जी करें।
डॉक्टर साहब ये निदा नासिर के केस का क्या बना, यूके में ही है ना इस वक्त? हाँ नहीं, निदा नासिर से इन्होंने वही किया जो मैं आपको अभी बता रहा था, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर ली है इन्होंने 20 लाख पाउंड दे के निदा नासिर को। और पुलिस ने निदा नासिर को एक खत जारी किया है कि बीबी इस वक्त तो तुम विड्रॉ कर रही हो, लेकिन तुम जब दिल चाहे आ जाओ। ये है जी उस केस का फैसला। इन्होंने उसको 20 लाख पाउंड दिया जिना करवाने का बाप से। ये है जी कादियानियत। डॉक्टर साहब मेरा भी एक क्वेश्चन है जी। जो ये मिर्जा लुकमान है, ये मिर्जा जो था नासर उसका बेटा है, तो ये अभी भी कोई ओहदेदार है इसमें कंजर खाने में? हाँ, मैं आपको एक ये बात मैं बता रहा था, शायद दरमियान में रुक गई, कि ये जब पैसा खाते हैं ना तो इनके खानदान के हर फर्द का एक वजीफा लगा हुआ है। किसी का वजीफा इस नाम पर लगा है कि ये इसने 4 दिन शादी रही, जैसे वो ताहिरा थी, उसने इनके वो जो जानी किस्म का बदबख्त था नासिर, उससे 30-40 दिन शादी रही, फिर वो उससे ज़िना रात को कर रहा था। तो मुझे तो ऐसे लगता है ताहिरा ने उसको जानबूझकर मार दिया, उसको हुआ हार्ट अटैक। ताहिरा ने कहा देखो जी वेट करते हैं कितनी देर हार्ट अटैक से मरने में इसको लगती है। वरना मैं आपको सच्ची बात बताऊं, ये मेडिकल साइंस में मेडिकल साइंटिस्ट हूं, कोई दुनिया का बंदा मुझे इस बात पर चैलेंज नहीं कर सकता। जब एक 60 साल से ऊपर के आदमी को हार्ट अटैक होता है ना, उसका फौरन मरने का इम्कान बहुत कम होता है। ये मैं आपको एक बड़ी बात बताता हूं हार्ट अटैक के बारे में, कि वो हार्ट अटैक से जितने लोग बच जाते हैं उनमें अक्सरियत जो है 60 साल से ऊपर लोगों की है। अगर 50 साल से कम किसी को हार्ट अटैक हो तो वो उसी वक्त उनमें से जो 1/3 है उसी मौके पर ही आपके पहुंचने से पहले वो खत्म हो जाते हैं। उसकी एक बड़ी साइंसी वजह है इस बात की। अब वो था 70 साल से ऊपर। और ये मतलब अच्छी खबर है बूढ़ों के लिए, बुरी खबर है जवानों के लिए कि बूढ़े जो है ना हार्ट अटैक से इतनी जल्दी मरते नहीं हैं। उनको आपने देखा होगा, बात बूढ़े उनको 3-3, 4-4 हार्ट अटैक होते हैं, फिर भी चल फिर रहे होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसकी वजह है कि जो कोरोनरी कोलेट्रल्स हैं ना, अब ये साइंसी बात हो जाती है, खून की नालियां की जो है ना 40-50 साल की उम्र तक बनती रहती हैं और बूढ़े में बन चुकी होती हैं, इसलिए उसको हार्ट अटैक की एक नाली बंद हो जाए तो दूसरी बहुत नालियां खुली होती हैं। लेकिन जवान में चूंकि बन रही होती हैं, बनती नहीं, फुली बनी नहीं होती, तो उसकी एक बड़ी नाली बंद हो जाए उसी वक्त वो छुट्टी हो जाती है उसकी। तो खैर अब वो था 70 साल का, ताहिरा थी डॉक्टर, उसने किंग एडवर्ड से मेडिसिन की हुई है अगर आपको नहीं पता। उसको हुआ हार्ट अटैक, तो उस बीबी अब बुढ़ा उसके साथ जना कर रहा है और 3 से वो जना करवा चुकी है। पहले लुकमान की गर्लफ्रेंड थी, फिर अयूब नामी एक डॉक्टर था मेयो हॉस्पिटल में, उसकी मतलब एक जनाकारी और बदकारी तो इस खानदान का खासा है। तो वो उसने कहा कि अब वो चाहती तो इसको बचा सकती थी नासिर को। उसने इसको ठा करके सुनाया है कि ऊपर से उतारा, फेंका, और फिर उसने आधा पौना घंटा किसी को बताया नहीं। और जब उसको पता लग गया, अब देखें वो तो ट्रेन डॉक्टर है ना, उसने किंग एडवर्ड से MBBS किया हुआ था, 24 साल की थी उन दिनों, और उसमें बड़ी शदीद नफरत होगी कि बुढ़ा मेरे साथ बदकारियां कर रहा है। और वो तो मतलब जो जब ये अलहदगी में होते हैं ये तो शैतान होते हैं, पूरे के पूरे जो अपनी बेटियों से जना करते हैं उसकी शैतानी क्या करे, तो उसको नफरत आई होगी। उसने इसको जनाब आधा घंटा आप डिले कर देना तो बंदा मर जाता है। ये मैं आपको बताऊं, आदमी को बचाने के लिए जिसको हार्ट अटैक हो रहा है ना, आपको एक खास किस्म की दवाइयां देनी पड़ती हैं ताकि खून की सप्लाई जारी रहे, और इससे ज्यादा बढ़कर आपको ऑक्सीजन देनी पड़ती है उसको, क्योंकि निज़ाम ऐसा होता है कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो आपको हायर कंसंट्रेशन में उसको ऑक्सीजन देनी पड़ती है। तो उसने ये कोई काम भी नहीं होने दिया और मिर्जा नासिर के यहाँ हो गया। डॉक्टर साहब मेरा एक छोटा सा सवाल आ गया बीच में। आपने कहा मिर्जा लुकमान, तो ये वही मिर्जा लुकमान है जो नदा नसर से जिना करता रहा, उसका बाप? बिल्कुल। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि जो नासिर ताहिरा थी इनकी सबकी, जिसको बड़े शौक से बड़े बड़े भी कहते हैं ताहिरा आपी, हाँ। तो ये लुकमान की गर्लफ्रेंड थी। और मैं कहता हूँ लुकमान सरेआम जना करता था उससे। देखो कुदरत निज़ाम कुदरत है। देखो मिर्जा उसने जो है नासिर ने उसकी बेटी गर्लफ्रेंड को चोरी किया,
और दोनों ने माँ बाप और बेटे ने जिना किया, और फिर देखो जो ये शैंडी शाह है इसने माँ और बेटी से जिना किया, अल्लाह ताला ने दुनिया में ही उसको सजा दे दी है। हाँ तो नहीं, ये शैंडी शाह ने तो कमाल कर दिया ना, और नहीं, उसने उसका इकरार कर लिया, कहता है कि माँ भी